इफ यू आर लर्निंग इट बाय सेल्फ यू गेट कंफ्यूज, डिस्ट्रैक्टेड, आप क्या कर रहे हो आपको समझ में नहीं आएगा, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो जाएगी कहीं ना कहीं. बट इफ यू आर लर्निंग इट फ्रॉम ए प्रॉपर मेंटर, प्रॉपर गाइड, यू एनरिच योर कॉन्फिडेंस लेवल. you'll see, मैंने बोला कि ये सिल्वर सिर्फ एक ट्रेलर था. I should try for gold, and that was a miracle again in my life. I'm still a part of the gold batch. One of the major thing was started taking offline workshops. आपने जस्ट वो स्टार्ट किया वो सेशंस और मैंने एक ऑफलाइन वर्कशॉप ले लिया. Little amount I earned from that, but a lot of happiness. I got a lot of followers from that. So, welcome everyone to yet another Hall of Fame interview here. Today, I have a very special person with me who is Nirmala Sahu sir. इन्होंने हमारे साथ कम्युनिटी में जर्नी शुरू करी थी लास्ट ईयर 2024 में जुलाई के आसपास एंड टुडे ही हैज एक्चुअली अचीव्ड 80,000 प्लस रेवेन्यू by going through that 50K art challenge. And here we are with Nirmala sir as the main person today. So yeah, Nirmala sir, first of all, a big congratulations. You pushed through all of that. And you know the best part that I like about you is that कि आप जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, you had I don't think you had any experience with teaching earlier, right? And then you jumped into this community, you did that challenge, the charcoal art battle, and then you eventually went into the income challenge. फिर वहां से भी आपने कुछ अच्छा अचीवमेंट किया. So can you just walk us through that entire journey starting से बिल्कुल कि आपका कहाँ से बैकग्राउंड, आप क्या करते हैं, या प्लीज go ahead with that. Sure, sure. First of all, thank you so much, Vaishnavi ma'am, for giving me this platform where I can speak about myself, about the journey, and all the artists, whoever are listening to me in this platform. Maybe I would be an example for many of us. Okay. So, just to take you through the journey, first of all, the journey is very unexpected. It has come very unexpected way. I come from a corporate finance background. Okay. But if I take you back to the prehistoric age, when I was just 3 to 4 years old, and I actually took pencil in my hand and I started drawing, sketching, कुछ भी random बनाता था, कुछ भी ऐसे करता था, and my parents used to feel proud कि हाँ कुछ तो बना है, very good, very nice. कलरिंग में बहुत इंटरेस्ट था बचपन से ही, 4 years 5 years एज में बहुत अच्छी कलरिंग भी करता था. then suddenly what happened, I became color blind or something, and I stopped coloring. मैंने कलरिंग छोड़ दी completely. ठीक है. There was a long gap after college and my engineering days. I did my engineering also, and there was a long gap. मैंने sketchings बंद ही कर दिए थे almost, to the day when I actually saw your ad in Instagram, Creative Genius Hub का, and I thought कि I should give a chance to myself. कुछ तो करूँ यार. ड्राइंग में इतना अच्छा आर्टिस्ट था बचपन में, स्कूल में इतने अच्छे अवार्ड्स मिले थे, तो अभी क्यों बंद क्यों किया मैंने. So I thought कि नहीं, कुछ तो start करते हैं, and I registered for your free webinar, and I really loved it, the way you explained things. For me, attending your webinar was actually attending a webinar of, I mean, I imagined as if I'm attending a webinar of first Indian female artist. मुझे ऐसा फील हुआ कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने मेल आर्टिस्ट बहुत देखे थे, फीमेल आर्टिस्ट पहली बार देखा हूँ. was grown so to such an extent by conducting these classes, taking webinar sessions, master classes, and everything. So it was an eye opener for me that looking at you, looking at your age level, आपने जिस तरह की प्रॉस्पेरिटी हासिल की है, तो हमारे लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं था. सो that's when I took a decision कि yes, let's get into it. I was not aware चारकोल क्या होता है, never touched चारकोल pencils, चारकोल stick, चारकोल powder, कभी ये सब मैंने हाथ भी नहीं लगाया था. So it was the first time for me. ग्राफाइट पे बहुत काम किया है मैंने, but yes, register किया आपके courses को, and I went through that 1 month जो आपका silver package है. July 24 I started my batch with you, and it was a life changing for me. It was a life changing. Though I'm a finance guy, a corporate guy. 8 से 10 घंटे मेरे ऑफिस में जाते हैं. I stay in Mumbai, traveling in local trains and all. मैं 8 बजे ऑफिस जाता हूँ, रात को 9-10 बजे घर वापस आता हूँ. And after that, completing your assignments was a big task for me. Submitting in on time before 12 a.m. midnight. That was the biggest challenge. मैं 2-2 3-3 घंटे में assignments complete करके रात को 9 बजे के बाद ऑफिस से आके complete करता था, and I used to submit it on time. Then even I think I have checked with Priyadarshi sir also कि मेरे assignments मिले क्या. He said कि वो register हुए होंगे. I have not checked for everyone. तो वो एक डर भी रहता था यार, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं. फिर मुझे लगता था इसमें फेल होके मुझे मिलेगा क्या. So yes, that was a challenge. 1 month मैंने बहुत स्ट्रगल किया है सिल्वर पैकेज के लिए. मैंने सोचा नहीं था कि I would be one of the top 100 guys who would be qualifying, certifying that also, and that made me really happy. So this first portrait which is hanging over here, जो हमने butterfly girl बनाया था जुलाई बैच में, that's still a memory for me. My first charcoal portrait.
एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड दिस कि मेरे पास तब ना ड्राइंग पेपर्स थे, मैंने प्रिंट आउट पेपर में ये पोर्ट्रेट बनाया हुआ है। क्योंकि तब मैं इतना सीरियस नहीं था चारकोल पोर्ट्रेट्स को लेके, मुझे लगा हाँ ठीक है सिल्वर बैच ही तो है, 30 days निकाल लेते हैं फिर सोचेंगे। सो आई डेंट पुट लॉट ऑफ मनी, इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी ऑन द टूल्स। मैंने सिर्फ चारकोल पेंसिल्स खरीदे थे, स्टिक खरीदा था जिसको मैंने घिस के पाउडर बनाए थे, एंड आई यूज दिस प्रिंट आउट पेपर। इस पे रख के मैंने बनाया था, मेरा कोई सेटअप नहीं था, ना टेबल था ना कुछ था। आई डिड इट एंड आई वाज वेरी हैप्पी। उतना अच्छा नहीं बना था फर्स्ट पोर्ट्रेट, बट आई स्टिल कीप इट फ्रेम्ड इन फ्रंट ऑफ मी। दैट वाज वन ऑफ माय मोटिवेशन लेवल, द वे यू टॉट अस द सिल्वर बैच। फिर आपने गोल्ड को डिक्लेयर किया, गोल्ड बैच में आप आइए एंड यू सी, मैंने बोला कि ये सिल्वर तो सिर्फ एक ट्रेलर था, आई शुड ट्राई फॉर गोल्ड, एंड that was a miracle again in my life. I'm still a part of the gold batch, and दिन में स्प्रेडशीट्स के ऊपर काम करता हूँ इन माय फाइनेंस लाइफ। रात को आके पोर्ट्रेट्स करना, असाइनमेंट सबमिट करना, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस एक्चुअली, एंड विच आई हैव एक्सेल्ड आई थिंक। वो भी आप बोलेंगे एक्सेल किया है तो आई वुड एक्सेप्ट इट, मैं खुद को क्या तारीफ करूँ। And yes, I think I got few more certificates from you as well, and that was actually a motivation. तो दिन रात एक किए मैंने सिल्वर में गोल्ड में, and then there was a day then when my wife came and she asked me, why don't you start your own classes? So in the meanwhile I was teaching small kids, उनको ऑयल पेस्टल सिखा रहा था मैं सैटरडे संडेज को, बस सैटरडे संडे को ही मुझे टाइम मिलता था क्लासेस के लिए। So I told my wife कि it's too early, actually it's too early to start चारकोल क्लासेस, बिकॉज मैं अभी सीख रहा हूँ, जस्ट सीखा हूँ, एक दो सर्टिफिकेट्स ही मिलेंगे, इतना भी टैलेंटेड नहीं हूँ मैं। दो आई वॉज गुड विथ फ्री हैंड बचपन से, बट स्टिल चारकोल वॉज समथिंग न्यू मीडियम फॉर मी। देन आई थॉट कि आई गेव माई सेल्फ ए चैलेंज कि अनलेस एंड अंटिल आई फिनिश एटलीस्ट 20 to 25 पोर्ट्रेट्स, आई विल नॉट स्टार्ट माई ओन बैच। ठीक है, तो मैंने खुद को एक टारगेट दिया कि 3 to 4 months में एटलीस्ट मैं 25 चारकोल पोर्ट्रेट्स कंप्लीट करूंगा, उसमें से एक दो आई विल सेल इट एज ए कमीशन। If I'm able to do that, then I will qualify myself. मैं खुद को रेटिंग दूंगा कि yes, tick mark कि yes, I can go ahead and start my own batches. So that was a small journey, my background कि how this idea came to my mind. You will not believe, Vaishnavi ma'am, कि I was so passionate about starting my online classes that I even registered my brand for GST. I Wow. did a GST registration on day one without having a income or revenue in hand. So I have a GST number for Nirmale Sahu Artworks, which actually originated in the month of October 2024. But मेरा batch start हुआ नवंबर से, and that was a small journey how I started actually. Wow. I didn't know about that at all. Oh my God, God, So really ये nice. जैसे आपके appreciation चाहते थे, जब मैंने अपना मेरी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास लिया था आफ्टर कंप्लीटिंग माय सिल्वर इन द मंथ ऑफ जुलाई। अगस्त में मैंने फर्स्ट अपना ऑनलाइन क्लास लिया था, आपको मैंने बताया भी था शायद, पिक्स मैंने भेजे थे कि नहीं मुझे याद नहीं है, बट दैट वाज फॉर द ऑफिस क्राउड, Mm-hmm. ऑफिस वालों के लिए। सो 300 प्लस स्टूडेंट्स, नॉट स्टूडेंट्स, एम्प्लॉइज एक्चुअली ज्वाइन ऑल ओवर इंडिया, and they participated and we did that moon and deer one. Mm-hmm. We completed that in 2.5 hours, and everyone was amazed. There were many people who were not even aware about what charcoal art is all about. So it was shocking, my first online class, though I got a little payment for that also. But that was really, I enjoyed it. I enjoyed that. So Wonderful. that's when I realized, yes, chalo, kuch to karna chahiye abhi. Let's start it. Wow. It's a That's small journey. so good, so good. I could actually see कि you first started learning on your own, and then फिर आपने let's say उसको complete किया, पहले चारकोल आर्ट बैटल finish off किया, then you decided to start your own classes, and then you also got a good push from your wife कि हाँ आप कर सकते हैं ऐसा, and then you also went far ahead और आपने जीएसटी के आसपास भी जाने का पूरा प्लान बना लिया, सब कर लिया, because you were so like बिल्कुल तैयारी के साथ थे आपकी, अब तो करना ही है, right? So can you walk us through that कि व्हाट इज दैट थिंग कि लेट्स से वही चीज अगर आप खुद से ट्राई करने जाते हैं, लाइक लर्निंग पार्ट, स्पेशली इफ आई हैव टू से कि वो स्किल वाला जो पार्ट होता है कि हाउ द Hmm. एक्सपीरियंस वुड हैव बीन डिफरेंट अगर आप यही चीज शायद खुद से करने जाते वर्सेस जब आप कम्युनिटी में आप हो, जब आप इस एक चैलेंज के थ्रू जा रहे हो या आप लोगों का भी Hmm. सपोर्ट ले रहे हो, तो कैन यू जस्ट शेयर दैट डिफरेंस एंड द लेट्स एक्सपीरियंस किस तरह से अलग होता हो एंड या समथिंग लाइक Absolutely. So that's what I speak about more when I take my webinars also, the difference part. So the difference is when we are a self learner. Okay, जब हम खुद से सीख रहे हैं,
मे बी थ्रू इंस्टाग्राम या यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू हम एक वीडियो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम ड्राइंग एन आई और समथिंग, हेयर और नोज और समथिंग। मैं एक वीडियो देख रहा हूँ इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में, ठीक है, वो वीडियो का एक पार्ट अपलोड होता है, इट माइट बी हाइपर लैप्स वीडियो, ठीक है, बहुत फास्ट रन होता है, यू आर नॉट एबल टू कैप्चर एवरी डिटेल। एंड ऑफ द डे वीडियो 5 मिनट का होगा, 10 मिनट का होगा, हमने देखा, उसको समझ में नहीं आया या क्या टूल्स यूज हुए इसमें या क्या टेक्निक यूज हुई, उसमें पता नहीं चलता है। देर आर मेनी वीडियोज जिसका पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 भी नहीं मिलता है हमें, हम ढूंढते रहते हैं, या किसी और आर्टिस्ट का मिलता है। हमने एक आर्टिस्ट का देखा कुछ एक वीडियो, वो कुछ लैंडस्केप बना रहा है, फिर अचानक से उसका पार्ट 2 हमें नहीं मिलता, देन वी ट्राई लुकिंग फाइंडिंग आउट वीडियोज ऑफ सम अदर आर्टिस्ट। सो पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि करना क्या है, कहाँ से किसको फॉलो करे। देयर इज नो मेंटर, नो वन टू गाइड अस ऑन द यूट्यूब और ऑन द इंस्टाग्राम, ठीक है। आंख बनाने का एक टेक्निक इंस्टाग्राम में दिया होगा, some other artist would be uploading some other technique for that. So which one is the correct one? We are not aware about it. उसने क्या tools use किए? We are not aware about it. So life में my suggestion would be, I believe you have also taught us many times that there has to be one mentor. Just follow one mentor, and so many people around you, so many artists or teachers around you would make you more confused, right? So this is what I learned after joining the Creative Genius Hub, that there is a lot of change. इफ यू आर लर्निंग इट बाय सेल्फ, यू गेट कंफ्यूज, डिस्ट्रैक्टेड, आप क्या कर रहे हो आपको समझ में नहीं आएगा, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो जाएगी कहीं ना कहीं। बट इफ यू आर लर्निंग इट फ्रॉम अ प्रॉपर मेंटर, प्रॉपर गाइड, यू एनरिच योर कॉन्फिडेंस लेवल। आपको अपना टारगेट नजर आना शुरू हो जाता है व्हेन यू हैव अ प्रॉपर मेंटर। सो दैट्स व्हाट यू डिड व्हेन यू केम टू माय लाइफ। So that is a small difference of self learning and getting into a community. Then we were added into the group of community members, gold में या silver में, where they were posting different things and we started learning from them also. उनके artworks देख के कहीं कहीं हमारे दिमाग में भी आता है, अरे यार ये इतना अच्छा बना रहा है, मैं और इससे अच्छा बना के दिखाऊंगा और पोस्ट करूंगा। तो it's challenging, it's competitive, and it's motivating as well when you are in a group of people in a community. So that's the difference. जबकि if you're a self learner, whom are you competing with? You are alone, you are just a standalone person. आपका ना कोई आर्ट वर्क देख रहा है, ना कोई तारीफ कर रहा है, ना आप मोटिवेट हो रहे हो, और कहीं ना कहीं लोग आके बोलते हैं अरे आप कर क्या रहे हो एग्जैक्टली। Correct. सो दैट्स द चैलेंज ऑफ अ सेल्फ लर्नर एंड व्हेन यू आर इन अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, दैट्स व्हाट आई फील। Exactly, 100% true. I totally believe that. And I think, the community energy, that's completely different thing. क्योंकि जब हम इस तरह से एक group of like-minded लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, who have the same aspirations, same problems, same desires, तो वहाँ पे हमें realize होता है कि we're not alone in this journey. And that's very करेक्ट, important as an artist when we are starting out. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। Awesome. We can also see your beautiful artworks in the background, sir. आपने तो इतने सारे प्यारे प्यारे artworks बनाए हैं. I'm sure, anyone watching this video must be like already so overwhelmed by your creations. Also, हम screen पे भी viewers को आपके artworks दिखाएंगे जो आपने अभी तक बनाए हैं. मगर also we बिल्कुल। are we are also curious, Nirmala sir, that after you went through that entire learning process, that whole journey, आपके लिए चारकोल नया था, right? यस। It was absolutely like a new medium. या Right. Now, can you tell us when was the first time that you got your first, commission, or let's say you started selling your art? Can you walk us through that also? That first experience with like artist का कि हाँ, I mean मेरा art वो first time sell हुआ है. I remember mine also, but yeah, can you also tell us about that? यस एब्सोल्युटली। इफ यू रिमेम्बर लास्ट ईयर हमने, आई थिंक गणपति के टाइम पे, आफ्टर अगस्त और आफ्टर जन्माष्टमी, वी डिड अ half female and half elephant, that was a Gauri Ganesh type, we did a portrait. That was the first time mythological script that I did it very late after आपकी क्लास के बाद एक्चुअली मैंने वो बनाया था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, I could not submit it also on time. तो that assignment actually changed my life, that actually changed my life. मैंने उसको अपने ऑफिस ग्रुप में वो पोर्ट्रेट को पोस्ट किया था, एंड दे लव्ड इट सो मच। आई गॉट कमेंट्स लाइक कि व्हाई डोंट यू सेल इट, ठीक है। सो आई थॉट कि नहीं यार, मैंने तो मतलब उतना सोच के नहीं किया था इसको, एंड आई जस्ट वांटेड टू डू इट। मुझे देवी देवताओं के फीचर्स बनाने में बहुत अच्छा लगता है। इफ यू आस्क मी, कंपेयर टू ह्यूमन एनाटॉमी, आई फील मोर एंथुजियास्टिक व्हेन आई वर्क ऑन गॉड्स एंड गॉडेसेस। इधर आपने एक देखा होगा अर्धनारीश्वर मैंने बनाया था, एक शिव जी का यहाँ पे रखा होगा, Yes, ये yes. वाली। यस, तो ये एक्चुअली इसकी सेकंड कॉपी है, फर्स्ट कॉपी ऑलरेडी बिक चुकी है। तो वैसे ही वो गणेश जी और गौरी जी की जो एक बनाई थी हमने, वो फिर मैंने फ्रेम कराया, तब भी मैंने शायद आपको दिखाया था एक कॉल पे कि आई फ्रेम्ड इट। इट वाज A3 साइज, एंड मैंने अपने लोकल ग्रुप में एड्स में डाला ये कि इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, एंड आई गॉट few people asking for it, price and all, and one of my close friend finally said कि I want to buy it.
for my house? And I said yes. And मुझे प्राइस बोलने में उतना अच्छा नहीं लग रहा था. He's a very close friend, but he still said कि नहीं, I want to pay you for this. And I said, okay, give me a minimum amount, whatever you feel good. So I got something like 500 rupees for that, but I was so happy. I was so happy. That was my first commission artwork, and that too, God's feature which we did. और उसको बनाने में एक्चुअली मजा आया था. इतनी सारी कारीगरी थी उसमें, ऑर्नामेंट से लेके that elephant के सूंड में जो कारीगरी and everything. I don't have that with me, but I'm not sure how to show you. But yes, maybe I have it in my mobile. I can show it end of this Surely, yeah, we call. would definitely Yes, see that. yes. Wow. So I'll that was the search it. first time. Yes, that was the first time, and then that gave me more motivation कि I should go for human arts as well. Commission art में और भेजना चाहिए. So again मैंने ads डाले बहुत सारे. कुछ तो अपने relatives को ही मैंने भेजे कि ads, I do this, I do that. Then मेरे wife के relatives के end से कुछ offer आए थे कि from Hyderabad कि आप ये बना के दे सकते हो क्या, मेरे बहू और जमाई का फोटो है, कैन यू ड्रॉ इट? आई सेड व्हाई नॉट. मैंने टाइम उनको नहीं बताया था, बट एक्चुअली शी वेटेड फॉर अ मंथ कि मुझे अपने काम से टाइम नहीं मिल रहा था. आई यूज्ड टू कम बैक होम एंड सिट फॉर इट 2 to 3 hours, and it took me actually 30 days time. नंबर ऑफ आवर्स बोलेंगे तो 8 से 9 घंटे ही लगे हैं, but I was not able to give time to it. And I couriered it to them. It was amazing. It was amazing. They really felt it. Wow. बहुत अच्छे कमेंट्स मिले थे उसके लिए. सो उसके बाद आई थॉट कि यस, आई शुड डू मोर फ्रिक्वेंटली दिस थिंग्स. मैंने कम से कम 8 से 10 ऑर्डर अभी तक ले लिए हैं in last 1 year time. Yes, that was amazing. That was really amazing. So it all started with that Gauri Ganesh that we did. शुभ शुरुआत हो गई है ना? गणेश जी ने शुभ शुरुआत कर दी. गणेश जी से शुरुआत होती है हर चीज की, राइट? Correct. So glad, so But I glad. still feel that I'm good with gods and goddesses, not with human anatomy. Of course, सबका एक होता है personal preference also. You know, like when I talked to Payal yesterday, she was sharing कि उसका ज्यादा inclination है animals की तरफ. तो उसे काफी हाँ, animals बनाने में राइट अच्छा लगता है. So yeah, that राइट was राइट राइट. 100%. फिर अगर आपको याद होगा, हमने मेरे ऊपर ही होगा, ये दुर्गा जी का एक है, दुर्गा जी एंड द लायन. Yeah, yes, yes. Oh, That wow. we did in the month of Dashera last year. Correct. Correct. Even that, उसका भी एक copy sold out है. This is second one which I kept. Amazing. And Ardhanarishwar is another which was, I kept it in few online exhibitions also, and I got good certificates and award for that. So I keep on participating in this online stuff. अच्छा Wow. लगता है उसमें. Awesome, sir. Really nice. That's Uh, actually a motivation for many other people that they should डरने का कुछ नहीं है. Just go for it. It's just a start. Initially थोड़ा डर लगेगा, but once you go with the flow, बहुत मजा आता है इस काम में. Exactly. And art itself is so it's so healing, it's so fulfilling, right? तो Yes. भले ही when an artist first starts out वो तो हमेशा दिल की खुशी के लिए शुरू करता है, but ये जो Yes. नेक्स्ट उसके बाय प्रोडक्ट निकल के आते हैं कि people are wanting your artworks, they want to buy it from you, या people want to learn from you, these are all the by products. मगर it all Yes. starts with you as the happiness वाला प्योर मोटिव होता है हमारा आर्ट Absolutely. शुरू करने का. See why see my logic is, ma'am, कि अगर उनके पास कोई अगर कुछ कमीशन आर्ट करना चाहता है, वो क्यों करना चाहता है? उनके पास ऑलरेडी एक फोटो है, आप उसी को फ्रेम कर लो ना एनलार्ज करके. Why they want an artist to go ahead and draw it again and give it to them? इसका कुछ तो लॉजिक होगा ना. ये Correct. अगर चल रहा है दुनिया में तो कुछ तो लॉजिक होगा. Because an artist brings that picture to life. We actually bring it to a life. We bring emotions to that portrait or something. तो उनको अच्छा लगता है वो. Yes. एल्स दे कैन, वो तो सिंपल सा फोटो है, आप उसको एनलार्ज करके प्रिंट आउट निकाल के फ्रेम करके लगा सकते हो घर पे. आर्टिस्ट की क्या जरूरत है उसके लिए? दैट्स व्हाट माय थॉट इज कि आवर जॉब इज टू ब्रिंग समथिंग टू लाइफ. उसमें थोड़े से इमोशंस भरते हैं हम, थोड़े से कुछ तो ऐड करते हैं. पता नहीं, कुछ तो जादू होता है इसमें पेंसिल्स में. True. I agree दैट्स on द that मैजिक. 100%. यस. Awesome. So, we would also love to know that, sir, how did the income challenge also help you? क्योंकि हम लोगों ने अभी recently 50K art income challenge रखा था. Whether pure intention of that challenge was to learn the income strategies and different ways of generating a revenue through art. तो उस challenge ने किस तरह से आपकी मदद की and उससे क्या किस तरह से आपने उसको implement किया, आप क्या हमें share कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम. दैट 90 डेज चैलेंज विच वी डिड, आपके सेशंस जो हमने अटेंड किए, मैंने बहुत सीरियसली अटेंड किए थे वो सेशंस को, बिकॉज आई वाज लैकिंग फ्यू थिंग्स, मे बी द सेल्स पिच एंड मेनी थिंग्स आई वाज लैकिंग, विच आई स्टार्टेड ओवरकमिंग. उतना भी ओवरकम नहीं किया मैंने. आई वुड से कि आई एम स्टिल लर्निंग. मैं अभी भी आपके पुराने वीडियोस को जाके देखता हूँ, कुछ
नया मिल जाता है तो आई ट्राई लर्निंग फ्रॉम इट. बट यस, दैट 90 days challenge was an eye opener, was an absolute eye opener wherein we learned from manifestations, affirmations. हमने क्या क्या नहीं सीखा. हमने सीखा कि लीड्स कैसे जनरेट करते हैं. हमने ये सीखा कि वन ऑफ द मेजर थिंग वाज स्टार्टेड टेकिंग ऑफलाइन वर्कशॉप्स. आपने जस्ट वो स्टार्ट किया वो सेशंस और मैंने एक ऑफलाइन वर्कशॉप ले लिया. आई थिंक अप्रैल एंड के आसपास, स्टार्टिंग ऑफ द मे, आई कंडक्टेड ऑफलाइन वर्कशॉप विद टाइंग अप विद वन ऑफ द एनजीओस. उसके भी मैंने आपको पिक्चर्स शेयर किए थे. एंड इट वाज ऑफ एज ग्रुप ऑफ सम 11-12 years से लेके 15 साल के बच्चे लोग का, प्लस अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम आवर कंपनी इटसेल्फ. सो almost 30 to 40 people joined that workshop, offline workshop. Little amount I earned from that, but a lot of happiness. I got a lot of followers from that, but that was an amazing. आपको मैंने बताया भी था, वो टॉपिक ही कुछ ऐसा था, रिन्यूएबल एनर्जी. Yes. रिन्यूएबल एनर्जी में कौन चारकोल आर्ट बना सकता है. मैंने बहुत डीप रिसर्च किया 2-3 दिन, and I took the help of AI and many things, and I finally got a drawing which was actually resembling it, reconcile हो रहा था कि हाँ. Then I related charcoal to renewable source of energy. Charcoal is actually a renewable source Yes. of energy. वो मेन चीज मैं भूल गया था. मैं बोला अरे यार, मैं तो उसी प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ. So yes, that was a very very good and successful offline workshop that I did. Again, that was a revenue generator for me. Then I started taking classes and webinars more frequently. Lead generation के आपने ideas दिए हमें, manifestations के ideas दिए, vision board के ideas दिए. तो पहले क्या था, before that workshop, everything was planned, but it was in my head. I never documented those things. मैंने चीजों को डॉक्यूमेंट करके लिखना शुरू नहीं किया था कभी. बट आफ्टर योर वर्कशॉप आई स्टार्टेड राइटिंग थिंग्स. मैंने कुछ प्लान आउट करना शुरू किया कि मैं ये डेट्स पे वेबिनार कराऊंगा, ऐसे ऐसे लीड जनरेशन आइडियाज होंगे, नॉट ओनली थ्रू ऑनलाइन बट थ्रू ऑफलाइन ऑल्सो. लीड जनरेशन के आइडियाज जो आपने सजेस्ट किए थे वाया गूगल फॉर्म एंड मेनी थिंग्स, तो वो करने शुरू किए. व्हाट्सएप ग्रुप में एड्स डालने शुरू किए सोसाइटी के अंदर अंदर में, गोइंग टू कैफेज और नियर बाई आउटलेट्स एंड प्रमोटिंग योर ब्रांड कि दिस इज व्हाट आई डू. या फिर कोई स्टेशनरी शॉप्स है जहाँ पे पेंसिल एंड ड्राइंग मटेरियल्स मिलते हैं, उनको जाके अपना कार्ड दे के आना. सो दिस इज व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इनिशियली ऑन अ वीकली बेसिस. और भी बहुत कुछ कर सकते हैं बट टाइम की वजह से नहीं हो पा रहा था. बट ठीक है, दिस इज व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग एंड आई स्टार्टेड राइटिंग थिंग्स दैट हेल्प्ड मी अ लॉट. सो इफ आई ट्राई टू शो यू, आई हैव taken a printout of what I have written in last 8-9 months. मैंने ये सब लिखा है. सो इसमें मैंने, अभी आप पूछोगे कि क्या लिखा है, मैंने इसमें लिखा है मेरा मिशन. व्हाट एग्जैक्टली इज माय मिशन, व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू डू, व्हाट एम आई ऑफरिंग, राइट, एंड whom am I going to serve, व्हाट इज माय टारगेट ऑडियंस, उनकी एज ग्रुप क्या है. ये सब मैं पहले नहीं लिखा था कभी भी. लास्ट व्हेन आई स्टार्टेड इनिशियली लास्ट ईयर, देन व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स डू आई सिलेक्ट. Am I going to target students? I am going to target the college people. Am I going to target, my audience will be employers, employee, कॉर्पोरेट पीपल, फाइनेंस पीपल, डॉक्टर्स. किस तरह के ऑडियंस को हमें टारगेट करना चाहिए, वो सब मैंने स्ट्रक्चर आउट किए. फिर व्हाट काइंड ऑफ कोर्सेज दैट आई एम गोइंग टू ऑफर, ठीक है, वो प्लान आउट किया. किस तरह के अवार्ड्स मुझे देने हैं, व्हाट काइंड ऑफ उसमें अचीवमेंट्स क्या क्या रखने चाहिए मुझे. देन स्ट्रेटेजी क्या अपनानी चाहिए, व्हाट इज माय मार्केट स्ट्रेटेजी, मार्केट में क्या चल रहा है, मुझे कुछ नया देना था. ठीक है, जो चीज ऑलरेडी चल रही है उसके अलावा भी कुछ और नया देना चाहिए, ये मैंने सोचा. सो आई स्टार्टेड राइटिंग इट, क्योंकि जब तक यहाँ पे रहेगा हम चीजें भूलते रहेंगे. सो मैंने लिखना शुरू किया एंड आई टुक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस 20-30 पेजेस का. मैंने प्रिंट आउट लिया एंड आई रीड इट often, most oftenly on weekends. I started reading it कि what exactly I am doing. So what is the structure of my program and many things, what kind of a community I want to build, because end of the day our target as an artist is not to just create WhatsApp groups and चुप बैठ जाओ. We are trying to build communities, राइट. उसी को लेके हमें आगे चलना है जनरेशन टू जनरेशन. बिकॉज मैंने बहुत रिसर्च करके पढ़ा कि चारकोल आर्ट इज नॉट जस्ट अभी अभी स्टार्ट हुआ है, इट्स अ 30,000 year old. जब हम अर्ली मैन स्टेज में थे तब केव्स में बनाया जाता था चारकोल आर्ट. ये तब से स्टार्ट हुआ है. एंड देन we still have many caves in India, in MP, भीमबेटका caves and जोगी मेरी cave, जहाँ पे अभी भी चारकोल आर्ट बने हुए हैं. So it's a legacy which we are carrying forward to the new generation. आप जैसे लोग, आप जैसे great artists जो हैं, जो हमें सिखा रहे हैं, हम इसको कहीं ना कहीं आगे लेके जाना चाहते हैं. So we don't want this culture to end it. We want that someone should carry forward it to the next generation as well. जो Gen Z, Gen Alpha जो भी आएंगे वो इसको आगे तक लेके जाए. That is what our motive is in this art. राइट. तो यही सोच के ये सब मैंने किया. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड many things I got structured out after attending your 90 days session. So this was just a small part of it which has helped me.
बट यस आई थिंक आपके 90 डेज ये जर्नी के बाद देयर वाज लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन माय रेवेन्यू, आई वुड से लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन माय लीड जनरेशन एज वेल, भले ही वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो। इनिशियली वो ऑल्सो टोल्ड मी पर्सनली कि ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी देखिए, अगर आप मंथली बेसिस पे भी क्लास ले सकते हो, विच अगेन आई फॉलोड एंड स्टार्टेड मंथली क्लासेस आल्सो सैटरडेज एंड संडेज। तो यस, ऑल योर आइडियाज which you have told me, it has worked out. If not 100%, yes, but yes, it has worked out, I would say. So lot of kudos to you, first of all, that you brought us to this journey. You have been a mentor, you are holding our hands, हमारे हाथ पकड़ के आप चला रहे हो, and within the class also you are very patient, I would say. नहीं तो आर्टिस्ट लोग यूजुअली, आई डोंट नो आई शुड से इट और नॉट, बट बहुत लोग सिर्फ रिकॉर्डेड कॉल्स चलाते हैं, बट यू टेक लाइव क्लासेस विच इज एन इंस्पिरेशन, एंड यू स्पेंड आवर्स विद द स्टूडेंट्स, उनके डाउट क्लियर करने के बाद, उनकी पोर्ट्रेट्स देखने के बाद यू एंड द कॉल। सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू डू, एंड वी रियली अप्रिशिएट। Thank you so much, Nirmala sir. But your journey is so inspiring. Like as we are also listening to your story, and आप जिस तरह से वो बता रहे हो, so we can definitely say कि I think वो आपका लिखने वाला मुझे बहुत अच्छा लगा. And I would suggest all of you, everyone listening to this video, कि start writing down, right? Whatever your goals are, your plans, जो भी आपको करना है फ्यूचर को लेके, उसको जब आप लिख देते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टेशन पावर्स को अपने लगा देते हो काम पे, राइट? एंड you eventually bring it to life also. So I think that's really inspiring. And पता है प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो when we write ना, तो हमारे ब्रेन में जो भी आइडियाज हैं, जब उसे हम पेपर पे उतार देते हैं, तो वो फिर हमें केवल थिंकिंग से डूइंग वाले स्टेज पे आने लगते हैं. So that's also करेक्ट। another very important thing to consider when we write. So very nice, wonderful. So Nirmala sir, we would also like to know कि इस जर्नी की वजह से बिकॉज ऑफ द इनकम चैलेंज, कहीं ना कहीं जो हमारे हमेशा मन में थे चीजें करने के लिए, वो आपने उसके ऊपर फाइनली एक्शंस लेना शुरू किया. एंड आई थिंक एक्शंस इज द मेन स्टेप, जो हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट लोग कहीं ना कहीं नहीं ले पाते हैं. दे आर ऑलवेज इन देयर हेड्स ओनली ऑल द टाइम. करेक्ट। मगर वी नीड दैट इट पुश, थोड़ा सा किक फैक्टर हमें लगता है कभी कभी उन सारे हम्म। थॉट्स को रियलिटी एंड एक्शंस में बदलने के लिए. मगर करेक्ट। ऑल्सो वी वुड लव टू नो कि ये जो हमने जिस तरह से इनकम को किया और आपने भी काफी अच्छा अचीवमेंट किया, मगर क्या रोड ब्लॉक्स आए थे इस जर्नी में? क्या चैलेंजेस थे जिसको आपने स्टिल they were still there, but still you pushed through that and still you completed the whole challenge? Challenges were many, I would say, many challenges. First, the major challenge was, managing time between office as well as art, as well as again starting a different journey with the art. Okay, so there were three things: office work, आपकी classes के assignments and all, and starting my own classes as well. ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, तीनों तीनों चीजें चैलेंजिंग थे मेरे लिए। सो उसको ओवरकम करने के लिए मैंने सैटरडे संडे डेज चुने पहले तो। मंडे टू फ्राइडे आई कुड नॉट मेनी मेनी पीपल, maybe one of the drawbacks of my classes was I couldn't take it on weekdays. Maybe I was losing leads and people, less contact from people because of that. One of the major fact was that कि Monday to Friday में classes नहीं ले पा रहा हूँ, though there was a huge demand कि sir आप please लीजिए, but I could not. I was really helpless because I had a job also. So Saturday को मैंने time increase कर दिया. Instead of 1 hour 2 hours, I started making it 3 hours. Okay. Then with the offline online classes, I also started taking paid workshops. मैंने सोचा ऑनलाइन की दुनिया में जितना हो सके मैं थोड़ा घुसने की कोशिश करता हूँ, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज है मैं उसको देखने की कोशिश करता हूँ. I started with very very small tickets. Started with 10 rupees also. I started with 20 rupees also, 50 rupees, 99 rupees. अभी धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ. That was also a major challenge कि I was not getting crowds from that paid workshops जो होते हैं, very limited crowds, वो भी धीरे धीरे भी बढ़ रहे हैं. That challenge is also overcome. Then one of the biggest challenge was the sales pitch, which आपके साथ मैंने बहुत बार बोला है कि मैम मेरी सेल्स पिच में काम नहीं हो पा रही है. फिर आपने कुछ मुझे सजेशंस दिए हैं, कुछ आपने मुझे भेजा नोट्स एंड ऑल, एंड दैट रियली वर्कड आउट अ लॉट. दैट रियली हेल्प मी. फिर मैंने अपना अप्रोच चेंज किया. व्हेन आई स्टार्टेड कंडक्टिंग वेबिनार्स, मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से लेना अभी स्टार्ट किया. पुराने तरीकों को थोड़ा सा एक्सक्लूड किया एंड थोड़ा सा वैरायटी लाने की कोशिश की, कुछ नया लाने की कोशिश की. सो आई लॉन्च माई सिल्वर, उसमें मैंने नाम चेंज किए. एंड आई स्टार्टेड द स्केच स्टार्टर पैक, जिसपे कि मैं कुछ और अभी एडिशनल देने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम थिंकिंग ऑफ समथिंग न्यू की चारकोल के साथ कुछ और मीडियम को मिक्स करके वी शुड स्टार्ट. तो ये सब चैलेंजेस थे इनिशियली. इसमें टारगेट्स नहीं मिल रहे थे हमें, बट दैट टू आई वर्कड अपॉन एंड स्टार्टेड गेटिंग लीड्स ऑन दैट एज वेल. So that helped a lot. Another challenge was managing time and all.
which I already said. Work life balance थोड़ी सी इधर उधर हो रही थी. Many things I would say, but yes, slowly and gradually things are getting overcome. It is going towards moving towards a good direction, I would say. After guidance from you, it has started moving in a good direction now. So almost I'll be going to complete 1 year. I think in next month I'll be completing 1 year of Nirmal Sahu Artworks. Yes. Hopefully it was a wonderful learning journey, I would say. बहुत सीखा है मैंने, बहुत गिरा हूँ, बहुत उठा हूँ, बहुत कुछ सीखा. And yes, trying to work on wherever I'm lacking, wherever there are Wow. loops. I'm trying to go through your videos. आपके पुराने वीडियोस देखता हूँ, वापस सीखता हूँ. हाँ, ऐसे क्या था मैम ने, हाँ ठीक है चलो, लिख के रखता हूँ जितना हो सके. ऑनेस्टली मैंने विजन बोर्ड अभी तक बनाया नहीं है. दैट्स लैकिंग, यस, बट आई शुड डू इट. वो भी एक ड्रॉबैक है, वो भी मैं भूल रहा था, बट यस आई शुड डू इट. बट दिस राइटिंग हैज रियली हेल्प मी अलॉट. Hmm. मुझे बहुत चीजें याद रहने लग गई है, और मुझे अपना गोल प्लान नजर आ गया. अगर सामने का टारगेट ही फिक्स नहीं है, अगर वही फिक्स नहीं है, तो आप देख के निशाना लगाओगे किसमें? अर्जुन को भी निशाना लगाने के लिए चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए ना. Correct, correct, correct. राइट, तो वही चीज है, निशाना लगाने के लिए कुछ तो हो सामने, तब ना लगाओगे आप. Perfect. एंड अनलेस वी गेट अ गाइड और अ मेंटर, अर्जुन को भी कृष्ण की जरूरत पड़ी थी, वैसे ही आप हमारे लिए हो, गाइड करने के लिए. That's really inspiring, Nirmala sir. As I'm listening to you, I am like feeling already very, very pumped up and feeling like I should start something, right? वो एक फीलिंग आता है ना कि चलो यार, इतना मोटिवेशन जो मिलता है, हमेशा मन करता है कि ओके लेट मी नाउ वर्क ऑन दैट बिग प्रोजेक्ट जो मैं हमेशा से टालते आ रहा हूँ. So I'm into that feeling currently, honestly, listening to you because you're definitely so inspiring. The way you talk, the way you kind of give examples. I'm sure the listeners also जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी 100% यही फीलिंग तो जरूर आ रही होगी. बिल्कुल 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 मैम. Yeah. So, sir, अभी जैसे you have come this far. It's been, I mean, it's gonna be 1 year soon. तो अब आप अपने आप को आगे कहाँ देखते हो? I mean, what's next for you in this art journey? आपका क्या विजन है? Let's say next 2026 का, because we are almost nearing the end of this year. So yeah, what is your big thing? The next big thing coming up? Next big thing is to grow the community more and more. It's still a very small community as of now. Initially, when I started with my first batch, I had only, I think, 9 students in the first batch. उसमें से भी the challenge was कि 5 online and 4 offline है. Online, offline. I'm not sure. Am I the first teacher in this world who is teaching offline and online students on the same time? I'm not aware. बट वो एक चैलेंज था मैम, मैं बताना भूल गया कि मैं ऑनलाइन जूम कॉल पे हूँ 5 स्टूडेंट्स के साथ. ऑफलाइन 4 बच्चे मेरे घर पे बैठे हैं सेम टाइम, सैटरडे इवनिंग 7 PM. एंड मैंने क्या किया, मैंने लैपटॉप को टीवी के साथ प्रोजेक्ट किया सो दैट द ऑफलाइन स्टूडेंट्स कैन सी दैट, एंड आई वाज सिटिंग एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम एंड टेकिंग क्लासेस. सो आई डोंट नो, इट साउंड्स फनी, बट यस, दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ माय जर्नी. एंड अगेन द नेक्स्ट गोल इज, इनिशियली मैंने 8-9 स्टूडेंट से स्टार्ट किए थे. अभी एक साल में आई थिंक नाउ आई एम गेटिंग 14-15 स्टूडेंट्स पर बैच, 20 तक जाएगा. Maybe by the end of this year, December, I'm targeting more than 20 plus students in every batch. Plus, द विजन इज अगेन जो आपने सिखाया था कि यूट्यूब वीडियोस लाइव, यूट्यूब लाइव जाने के लिए या कुछ भी, मे बी फेसबुक लाइव और इंस्टा लाइव, आई शुड गो एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड. भले ही कोई आए नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई शुड स्टार्ट इट. दैट्स अगेन स्टेप 2. And increasing my community is again step 3. There are few goals. So by end of 2026, what my plan is कि एक establish online art classes चल रहा होगा with at least 500 to 600,000 plus students होंगे उसमें इस community में, wherein I'll be sharing my thoughts, they will be sharing their thoughts, their artworks. That's motivating, and that's when I will feel कि yes, कुछ तो किया है लाइफ में मैंने Hmm. आर्ट को लेके. एंड कुछ तो लोगों के, एटलीस्ट 1000 ही सही, 2000 ही सही, कुछ लोगों के लाइफ में कुछ चेंजेस लाया है मैंने. एंड द बेस्ट पार्ट इज मैन, द लास्ट बैच दैट आई फिनिश्ड, आई वुड लाइक टू शो यू दैट पार्ट एक्चुअली. Yeah. The last batch I finished with my students, most of them were senior citizens. So 60 plus में कुछ थे, different age groups actually, 6-7 years के बच्चे plus 60 plus and all, irrespective of the age groups, we finished this. Oh We finished wow. this. Incredible. And this was the last portrait that we did in the last batch. अभी एक नया batch start हुआ अक्टूबर में. And those people are so enthusiastic, so enthusiastic. A few people had left artworks 30-40 years ago, and they are saying कि सर आप एक, मतलब आपने क्या सिखा दिया. मैंने उनको एक चैलेंज दिया था कि मैम मैं 2 हफ्ते में आपके लाइफ में चेंजेस लाऊंगा. सिर्फ 2 हफ्ता मुझे दीजिएगा, अगर मेरे पे उतना भरोसा कर सकते हैं आप, 2 हफ्ते में I'll bring some changes. अगर आपने हथियार अगर 30 साल पहले डाले थे,
तो यू विल फील कि आप उस हथियार को वापस पकड़ के आप मैजिक क्रिएट करोगे। शी सेड कि नहीं सर, नहीं हो पाएगा ये 2 हफ्ते में, कहाँ 30 साल, कहाँ 2 हफ्ते आप बोल रहे हो। मैंने बोला कि आप देख लेना चेंजेस। एंड आई विल सेंड यू दैट मैसेज दैट मैम हैड सेंट मी। इतना अप्रिशिएटिंग मैसेज था कि उनके बच्चों ने उनके आर्ट वर्क की तारीफ की इन विद इन 2 वीक्स टाइम। Wow. सो दिस इज वेयर, मतलब सारा इनकम रेवेन्यू मैम एक तरफ, दिस इज द प्लेजर दैट यू गेट व्हेन समवन अप्रिशिएट्स योर वर्क। रेवेन्यू तो होते रहेंगे। Correct, correct. So that's my challenge to myself कि if not revenue point of view, if not monetary point of view, we should change people's life and their perspective कि art में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो. That's the biggest change. People like you are doing it, many other artists are doing it, and that's what I want to bring to this world कि हमने ये change किया. पैसे revenue ऐसा कुछ matter नहीं करता है. Let's see. Wow. 2026 should be a good one. It is going to be big. Absolutely. Wow, awesome. Super. So, so what would you like to say to someone जो अभी भी सोच रहा है कि I'm not sure if I can do this, या let's say another someone just like you who is also into a job मगर उससे उन्हें शायद बचपन का शौक था आर्ट को लेके, and they are just waiting for that, let's say that little ray of hope कि क्या मैं कुछ कर पाऊंगा ये नहीं, आप उन्हें क्या कहना चाहोगे अपने पूरे जर्नी से? So I would say the same thing what my wife told me a year ago. My advice to anyone listening to this video, all the artists, to these people who just think that art is a hobby. It's my advice, my suggestion that don't wait for a perfect time. Okay, you may be a student, you may be a housewife, you may be an employee working for a corporate sector, anything. You are a doctor, student हो आप, किसी भी फील्ड पे हो, इफ यू हैव अ पैशन फॉर आर्ट, अगर आपने बचपन से कुछ सोच के रखा था कि आप आर्ट करोगे, सो डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, डू इट राइट नाउ। अभी दिस इज द राइट टाइम, गो अहेड, स्टार्ट, होल्ड द पेंसिल, होल्ड द ब्रश, वट एवर काइंड ऑफ आर्ट यू डू। हजार तरीके के आर्ट है दुनिया में, चाहे वो मंडाला हो, पेन आर्ट हो, डूडल वुडल हो, चाहे कोई भी हो, रंगोली हो, कुछ भी हो। दिस इज द परफेक्ट टाइम टू परस्यू योर पैशन, राइट। चारकोल इज मेसी, बहुत ही मेसी चीज है, बट यू कैन स्टार्ट स्मॉल। छोटे छोटी चीजों से स्टार्ट करो, एकदम छोटा, कुछ भी छोटा सा स्टार्ट करो। मे बी टीचिंग टू स्मॉल किड और एनीवन इन योर हाउस, आप घर पे भी किसी को सिखा रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ यू आर ए मेंटर, यू आर ए गाइड, आप गाइड कर रहे हो किसी को। बट स्टार्ट नाउ, दिस इज द राइट टाइम, जस्ट स्टार्ट योर आर्ट एंड वॉट एवर इट टेक्स, जस्ट गो फॉर इट, okay, and try to transform your life. Okay, you might be anyone. If I can do it, managing both, corporate life and this artwork, then even anyone can do it, I can say. कोई भी ये कर सकता है। थोड़ा सा बट जिद पकड़ना पड़ेगा कि हाँ मुझे करना है, मुझे ये करके दिखाना है। You will be able to do it. I can guarantee that. Wonderful, wonderful. That really sums up your whole story and your, the last 1 year's journey in that one sentence. कि if I can do it, anyone can do it. And it's just about that one moment कि शुरू करना है तो आज कीजिए, किसी फ्यूचर का ध्यान नहीं, मगर जो है आज करना है हमें. That's really inspiring. Absolutely. Wonderful. So it was such a nice time to have you here, Nirmala sir, in this episode of the CGH, Hall of Fame interviews. And your story has been like so inspirational for me also. And if the listener, if you also enjoyed watching this video, I would love you to tell me in the comments कि आपको सबसे बड़ा breakthrough क्या लगा सर की story में से, and what is it that one thing that you would like to also start implementing in your own life. मैं जानना चाहती हूँ. I'm gonna read every single comment here in this, YouTube section. So yeah, go ahead and please do that. And lastly, Nirmala sir, we all are very, very inspired by you, and we are definitely looking forward to, have your vision जो आप अब देख रहे हो, हम भी उसका हिस्सा जरूर बनना चाहेंगे. And for that, guys, you can see in the comment section, I mean in the description box, there's a link to Nirmala sir's webinar as well. If you guys want to go check out what he's doing, you can definitely go over there and join his community, because his community is really growing. And आपको अभी जिस तरह से हमने बात करके सर ने जो आपके पर्सपेक्टिव दिए हैं आपको, मे बी शायद if you kind of resonate with that, you can definitely go ahead and join his community as well. Also, if you're new here, I would love you to subscribe to this channel, like this video and share it with anyone जो अपने एक बचपन के ड्रीम को लेके अभी भी कहीं ना कहीं सही समय का इंतजार कर रहा है. Maybe this video can really inspire them to start their own journey with art as such. And yeah, hopefully this video goes to as many people as it can, right? That's what we believe over here.
एंड ऑल्सो टुवर्ड्स द एंड आई वुड जस्ट से कि अगर आपको भी अपनी सिमिलर जर्नी शुरू करनी है, यू कैन फाइंड अनदर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन एक्चुअली गेट स्टार्टेड विथ माय कम्युनिटी एंड इट्स कॉल्ड द चारकोल पोर्ट्रेट लॉन्च पैड. दिस इज द सिल्वर membership where you can get started and you can also create similar sort of transformations, and I would love to help you in your art journey. So yeah, definitely looking forward to that as well. So thank you so much, Nirmala sir, and it was pleasure to have you here in this episode. And yeah, looking forward to what big you create next in your journey. Thank you so much. Thanks to you, ma'am. Thanks to you. Thanks for all your support.